21. And switch on your video so that we can have nice interactive session. So what are Saras meetings? So every Sunday, either in the morning or in the afternoon, we meet and we study few charts. Okay. So today also I've given you a chart to study. Now the important thing about this meeting is, and the interesting thing is, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये किसका चार्ट है, ठीक है? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हुज चार्ट इज दिस, क्योंकि मैंने अगर बता दिया ना तो फिर आप सबके जो एनालिसिस हो जाएंगे ना वो बायस्ड हो जाएंगे, है ना? तो आप पहले क्या करोगे, उस पर्सन को पहले गूगल करोगे या चैट जीपीटी करोगे, राइट? और फिर सारी कुंडली उसके पहले देखोगे, लाइफ हिस्ट्री, और फिर चार्ट देखोगे, राइट? तो उसमें क्या होगा, अपने अच्छे से उसमें ये नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं होगी, राइट? तो सरस मीटिंग्स वो मीटिंग्स है जहाँ पे हमें हमारे एनालिसिस सामने रखने हैं, राइट? सरस मीटिंग्स वो मीटिंग्स है जहाँ पे हमें खूब सारी ढेर सारी गलतियां करनी है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, जब गलती करेंगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा, यस और नो, राइट? So that is what Saras meetings is all about, and we do this meeting every Sunday. Okay, and then after the end of this meeting, the recording of this also is publicly uploaded on YouTube also, right? So that you can refer to it anytime you want. All right. Okay, so let us get started with today's Saras meeting. Okay, and let me quickly share the charts that I have shared with you. Okay. Ah. Okay. नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या सेटिंग करते हैं, फिर सेटिंग क्यों चेंज करते हैं? Okay, so here we go. Interesting background noises, right? And in the interesting background noises, we will go ahead. Okay. Here we go. So these are the charts which I had sent, right? And I hope everybody has received them also, right? So what did we see here? So I have sent you the Lagna chart, and I have also sent you the planetary positions according to degrees, right? Okay. So what do we have here? We have a chart of a person who has 8th Rashi in the first house, right? And so that Rashi is Scorpio, and the lord of that Rashi is Mars, right? Abhi, this Rashi is also ascendant degrees 5 degrees, right? Correct. So this Rashi can be said to be in a transition Rashi according to Salsa method, right? जिनका खाली level 1 हुआ है, please don't take any tension. Whatever you know, you have to apply it. ठीक है? जिनका level 2 हुआ है, whatever you know, you have to apply. जिनका level 3 हुआ है, 4 हुआ है, 5 हुआ है, 6 हुआ है, whatever you know, you have to try to apply it. Okay? That is why we are here. Okay? So don't take any tension. Whatever you know. ठीक? And it will be great to listen to others also, listen to their feedbacks also, right? Okay. Then we have Uranus Ketu in the second house, and opposite of that we have Neptune, Pluto and Rahu in the 8th house. Okay, so that is another very interesting and planetary position, right? Let us look at the degrees of these planets. Ketu is 25 degrees. So that means Rahu is also 25 degrees, correct? Then Neptune is 22 degrees, okay? And Uranus is 16 degrees here, and Pluto is 2 degrees. Understood, right? Okay. So, is Neptune and Rahu in conjunction in this particular chart? What do you think? Yes. Yes, sir. Mamta ji is saying yes. What about others? Neptune is 22 degrees and Rahu is 25 degrees. Yes, sir. Yes, sir. Conjunction. Yes. So Neptune and Rahu are in conjunction indeed, right? Okay. Mars is in the third house in the 10th Rashi. Mars is 10 degrees.
Saturn is in the 4th house and Saturn is 29 degrees. So that means what? Saturn is in 4th and 5th house. Right? Correct. Then we also have Moon in the 5th house. Okay. And Moon is 4 degrees. So again, Moon is having 4 and 5. correct. Very good, Prasad ji. Excellent. Very nice. सर एक And क्वेश्चन एक सर मिनट एक हाँ एक ये खत्म कर लेते हैं then I'll come. Then Jupiter we have at how much degree? 18 degrees in the 9th house, right? Jupiter is 18 degrees in the 9th house, so it will have a predominant effect from the 9th house only. And we have Mercury, Sun, and Venus in the 12th house. Sun degree is 2, Mercury degree is 25. So is Mercury combust? No. No, Mercury is not combust, right? And Venus is 11 degrees. Okay. So is according to Salsa method Venus combust? No. No, right? So according to Salsa method, both Mercury and Venus are not combust. Okay. So overall, this is the chart that we are going to study. I am going to give you a few questions, right, which you have to try to answer by looking at this chart and by trying to analyze this chart. Okay. So the first question is, सर एक क्वेरी प्लीज जी बोलिए बोलिए. सर ये केतु 25 डिग्रीज में है सेकंड हाउस में Right. और मार्स जो है 10 डिग्रीज पे है तो ये कंजंक्शन में कहलाएंगे क्या मार्स कौन से हाउस में? थर्ड में है ना? थर्ड में 10 डिग्रीज है और करेक्ट. वो सो 25 केतु है मतलब 25 plus 5 is 30. So 5 plus 10, so 15 degrees. Yes. तो ये दोनों कंजंक्शन में कहलाएंगे Conjunction में है, right? Okay. So these are the questions. Please note down that you have to discuss in your groups. I am going to send you in groups. Okay. Right. And we have, after a long time, we have a nice, attendance to our Saras meetings also. Very good. Thank you all for joining in. Kya baat hai? Radhe Radhe. Okay. राधे राधे. So, question number 1, right? What is the predominant activity for this person in his life? What is the predominant activity for this person in his life? Matlab, where are all the energies focused? Okay, this is question number 1. Okay. Then family life and married life. Okay. फैमिली लाइफ मतलब पेरेंट्स के साथ कैसे रिश्ता हो सकता है और स्पाउस के साथ कैसे रिश्ता हो सकता है, राइट? ओके. थर्ड क्वेश्चन, ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न. ठीक है, ओवरऑल बिहेवियरल पैटर्न कि बिहेवियर में कौन सी चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है, कि कैसे होंगे, राइट? बहुत गुस्से वाले होंगे कि शांत होंगे, राइट? या कभी गुस्सा कभी शांत, कैसे होंगे, राइट? सो चेक दैट आउट. ठीक है. एंड देन फाइनल क्वेश्चन इज nature of death. Okay, try to find out the nature of death. Okay, how did this person die? Please repeat the last question. Nature of death. Okay, just try to answer that question also. And apart from this, if you find anything interesting, you can add that also in your discussions. All right. So now what I'm going to do is I'm going to send you into a breakout room. Okay, breakout room क्या होती है, right? आप अभी 37 लोग हैं यहाँ पे, 36, right? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 लोगों के 3 ग्रुप्स बनाने वाला हूँ, right? And I am going to give you to discuss 36 minutes. ठीक है, और वहां पे आप लोगों को अपना अपना एनालिसिस सबको you have to give. Okay. ब्रेकआउट रूम में बाकी कुछ नहीं करना है, फोन नंबर शेयर नहीं करने हैं, किसका नाम नहीं पूछना है, वहां पे माहौल कैसा है, राइट? आज का मौसम कैसा है, बारिश है कि धूप है कि छाव है, राइट? ये सब नहीं पूछना है, इसमें काफी सारा टाइम चला जाएगा, राइट? सो यू हैव 36 minutes to discuss these charts, right? And I will keep visiting the
breakout rooms. Okay, मैं आते रहूंगा and I will keep listening, and after 36 minutes we will come back. ठीक है, and then I will try to give you my insights on this particular chart. ठीक है, and at the exam end I will tell you who this person is. All right. So Sir, first question क्या था? I did not understand the question. I don't remember the question now. What is the predominant activity in his life? करेक्ट मतलब एनर्जी कहाँ पे फोकस करी थी इस इंसान ने, एनर्जी कहाँ पे फोकस करी थी, राइट? ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, so there are 3 or 4 questions that I have given to you that you have to discuss. Any other questions anybody has? सर Yes. वन हु हैज कंप्लीटेड लेवल 1 ओनली. सर Yeah. हम लोग अपना आउटपुट तो ज्यादा दे नहीं पाएंगे. बिल्कुल दे पाएंगे, राइट? अब So- अपन ने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि कौन से हाउस में कौन सा प्लैनेट है, राइट? सर और उनके बिहेवियरल. करेक्ट, उनके बिहेवियर बट सर जैसे राहु केतु एंड नो नेपच्यून. प्रॉब्लम. जो 7 प्लैनेट्स आपने सीखे है ना, उनका एनालिसिस आप कर देना, फाइन सर. है ना, और शेयर कर देना, और शेयर Okay, करने sir. के बाद बाकी लोगों का भी सुन लेना कि Right, अच्छा sir. ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट? जब भी आप ग्रुप में डिस्कस करोगे तभी तो ज्यादा सीखने को मिलेगा. करेक्ट नो? ओके सर. ऑलराइट, चलो, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. एंड आई एम, आपके यहाँ पे एक पॉपअप आएगा. यू हैव टू क्लिक ज्वाइन ब्रेकआउट रूम. ओके, एंड क्लिक ऑन ज्वाइन. ओके, आ गया पॉपअप, देखो तो, क्लिक ऑन ज्वाइन. का एस्पेक्ट है कंप्लीट, वीनस का कंप्लीट एस्पेक्ट है 6th हाउस में, केतु का पार्शियल, मार्स का कंप्लीट, सैटर्न का पार्शियल, जुपिटर का पार्शियल और मर्क्यूरी का पार्शियल. मतलब 6th हाउस पे काफी सारी एनर्जीज फोकस हुई है. हाँ. और 7th हाउस पे केतु का Saturn is not partial, no? हाँ जी, Saturn is not partial. It's 11 degrees. सैटर्न Saturn 29 डिग्री है मैम. 29 डिग्री है. 29. हाँ जी, हाँ जी. 11th राशि, 4th हाउस, इसमें देखो 29. राशि है 29 डिग्री पे. 29. हाँ, 7th हाउस पे केतु का पार्शियल, Oh. सैटर्न का पार्शियल, मर्क्यूरी का पार्शियल और मी प्लैनेट का कंप्लीट एस्पेक्ट है. प्लूटो इसमें पार्शियली बैठे हुए हैं. हाँ जी, ठीक है. और 8th हाउस जो है उस पे नेपच्यून है, प्लूटो है, राहु है, लेकिन उसमें एस्पेक्ट जो है केतु का पार्शियल और यूरेनस का कंप्लीट एस्पेक्ट आ रहा है. और 9th हाउस पे केतु का पार्शियल आ रहा है और नेपच्यून और राहु पार्शियली बैठे हुए. जुपिटर भी है. जुपिटर तो है ही है ना, मतलब वो शिफ्ट होकर के नेपच्यून और राहु गए हैं. जुपिटर तो बैठे ही हुए हैं, जुपिटर तो ओरिजिनली है ना. हाँ जी. हाँ जी. उसके बाद 10th हाउस में केतु का एस्पेक्ट है पार्शियल, मार्स का कंप्लीट एस्पेक्ट, सैटर्न का पार्शियल, मून का पार्शियल. 11th हाउस में सन पार्शियली बैठे हुए हैं, केतु का एस्पेक्ट है पार्शियल, मार्स का कंप्लीट, सैटर्न का पार्शियल, मून का पार्शियल. और 12th हाउस में कोई भी एस्पेक्ट नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये तो हो गई कुंडली का. तो जहां तक इसमें मैं अगर देख रही हूँ तो यूरेनस का काफी बड़ा रोल इनकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि यूरेनस के साथ ना बहुत सारे अति मित्र हैं. सन का अति मित्र है यूरेनस, मून का अति मित्र है, मार्स का अति मित्र है, मी प्लैनेट का अति मित्र है यूरेनस. क्या कह रही हैं आप? यस, प्लूटो का भी एस्पेक्ट देख रही हूँ कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में प्लूटो का एस्पेक्ट भी आ रहा है, पार्शियल है तो भी, हाँ क्योंकि हाँ, इनकी पर्सनालिटी की मेकअप में तो एनिमी है, बट तभी वो भी हमें साथ साथ देखना है. और मी प्लैनेट का सैटर्न भी जो है वो एनिमी है मार्स का, तो वो भी हमें देखना है. जुपिटर, प्लैनेट का सैटर्न एनिमी नहीं है, सैटर्न फ्रेंड है. मंगल का नहीं, मैंने एक्चुअली वो जॉइंट निकाल दिया दोनों का, वीनस और मार्स का. वो रिलेशनशिप चार्ट में दोनों के हिसाब से निकाल के, तो मैंने जो कंबाइन किया उसके हिसाब से
MP तो का। अभी अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इनकी पर्सनालिटी को देखते हैं कि पर्सनालिटी कैसे होगी। तो हाँ हाँ इनकी पर्सनालिटी जो है वो आ, कैसे, जैसे हम 8 नंबर की इनकी वो है, राशि है, तो हाँ, किस तरह का वाटर, हाँ, मतलब ठहराव होगा, अंदर बहुत कुछ होगा बट बाहर से एंग्री तो बाहर से होंगे। शो नहीं करेंगे, हाँ, लाइक शो शो नहीं नहीं करेंगे, करेंगे, हाँ, शो नहीं करेंगे। नहीं फिर करेंगे इनके ऊपर बिल्कुल भी। वीनस का भी एस्पेक्ट आ रहा है, मतलब वो है हाँ, पार्शल में, हाँ। तो लुक वाइज भी अच्छे होने चाहिए, स्मार्ट से होने चाहिए, लुक और वाइज रंग warrior इनका थोड़ा सा सांवले पे ही जाएगा क्योंकि सैटर्न का का एस्पेक्ट है। भी आ रहा है और प्लूटो का भी आ रहा है हाँ हाँ, ना। तो रंग इंटेलिजेंट होने चाहिए, इंटेलिजेंट भी होने चाहिए। चेतना जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। जी जी बोलिए। बिल्कुल। वो मेन फोकस जो है, सर ने जो पूछा था, फोकस ऑफ द, जो इनका फोकस है कुंडली का, तो हाँ मुझे लगता है इट इज मोर टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, बिकॉज एक तो प्लूटो, जुपिटर इज इन कैंसर, बीइंग इन एक्सॉल्टेड, व्हिच इज अ प्लैनेट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपेंशन। उसकी वजह से नेक्स्ट केतु का जो एस्पेक्ट आ रहा है इस पे, एंड जुपिटर इज आल्सो एस्पेक्टिंग केतु एंड यूरेनस बोथ। सो इनका जो एस्पेक्ट ऑफ नेपट्यून एंड राहु इज आल्सो एस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस, जो कि हम लोग बहुत एक मैजिकल प्लैनेट बोलते हैं ना इसको, इस कॉम्बिनेशन को। हाँ, बट सेकंड हाउस जो है वो ज्यादातर हम लोग फैमिली के लिए लेते हैं, थर्ड हाउस को हाँ, कम्युनिकेशन के लिए लेंगे। राहु तो एंड नेपट्यून बोथ आर इन द ऑकल्ट हाउस। ऑकल्ट हुआ, और ये स्पिरिचुअल और ऑकल्ट दोनों में फोकस आ रहा है इनका। मेन अब मेन देखो, इनका अकल्ट से ही रिलेशन है, जो भी हाँ, होना और चाहिए से वो रिलेशन है, अकल्ट से ही होना एक चाहिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का आ रहा में है, एक ऑकल्ट का आ रहा है, तो दोनों में से कुछ एक हो सकता है, देखो चांसेस इनको ना, हाँ, क्योंकि इन, नेपच्यून और राहु जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो मेन फोकस ऑफ लाइफ बना देते हैं। तो और मेन केतु फोकस भी है, केतु इनको स्पिरिचुअलिटी केतु में भी भी है, वो लेके भी जा उससे ही रहा है। रिलेटेड है। तो हाँ, हाँ, और केतु भी मिल से हाँ रिलेटेड है, और साथ हाँ में प्लूटो यूरेनस है, तो उनको नई हाँ, नई, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इन हाँ दोज एरियाज, तो एरियाज, वो एक हो जाता है उसके जी साथ। जी और जुपिटर इज आल्सो नॉलेज एंड रिलीजियस, जो है हमारा इंक्लिनेशन टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस एक्सपेंशन, जो है उस भाग्य स्थान में जुपिटर है। सो दैट इज जुपिटर, आल्सो हैविंग द सेम, लाइक उसको हाँ, एक ही तरफ लेके जा रहा है, उसी तरफ। और इसका जो राहु भी इवन आप दिस देखेंगे, लग्न, हाँ, राहु भी आप लग्न देखेंगे। में जो मार्क्स वाला लग्न है, सो दीज पीपल आर, सिंस 8th नंबर इज देयर, सो दीज आर मोर ऑफ सीक्रेटिव पीपल, जो अंदर है वो बाहर ज्यादा जल्दी नहीं बताते हैं। नहीं, हाँ, हाँ, और एंड दे वर्क, सिंस मार्स इज देयर रूलिंग प्लैनेट, तो वो क्या होता है ना कि वो एक सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लाइक मतलब एक ब्रॉडर वे में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और लॉयल होंगे ये, क्योंकि सैटर्न का भी इसमें एस्पेक्ट आ रहा है, तो ही माइट बी सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, और इन्होंने हाँ समाज के हाँ, लिए बहुत कुछ किया होना चाहिए। समाज के लिए, कम्युनिकेशन हाँ हाँ, वही स्किल्स मैं अच्छी, बता, मरकरी भी आ रहा है इनका हाँ फर्स्ट हाउस में ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन एंड वो राहु नेपट्यून का एस्पेक्ट भी आ रहा है ना, तो राहु नेपट्यून के एस्पेक्ट के वजह से कम्युनिकेशन भी अच्छी रही होगी, जिनके वजह से उनका जो मतलब स्पीच, ही कुड हैव गिवन गुड स्पीच इन दोज, इन द, उस तरह का प्रवचन जो देते हैं, उस तरह का अच्छा इनका बेस रहा होगा। राइट। अब फैमिली लाइफ, सेकंड चीज के ऊपर फोकस करते हैं, फैमिली लाइफ। सिंस केतु इज इन दी सेकंड हाउस, तो इनकी फैमिली लाइफ जो, यानी पेरेंट्स के साथ का, मुझे जैसे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, और ना ही अपनी फैमिली में इनको वो स्थान मिला है। रीजन बीइंग कि वहां पर सैटर्न भी आ जाता है, प्लूटो भी आ जाता है केतु और ना। प्लूटो दोनों का एस्पेक्ट आ रहा है केतु तो फैमिली 10th लाइफ में पे। बैठे हुए हैं, और हाँ, बैठे हुए हैं। सन जो है, हाँ, फादर के साथ इनका नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि सन 12th हाउस में भी है, अच्छे घर में नहीं बैठे, और बट थोड़ा सा एस्पेक्ट ये, तो मतलब ये है कि कुछ हाँ कुछ ना वाला इनके साथ रहा होगा। हो सकता है कि मतलब एट अ सर्टेन एज इनकी फैमिली, मतलब फैमिली से दूर हो गए हो, या फिर मतलब फैमिली किसी डेथ लाइक डेथ ऑफ द पेरेंट्स इन अर्ली एज पे डेथ हो गया हो, वैसा भी हो सकता है, जो और किसी वजह से ये दूर आ गए हो फैमिली से।
हाँ, फादर से इनका जो है वो दूरी दिखा रहा है, क्योंकि 12th हाउस में सन है, तो 12th हाउस में अगर सन बैठे होते तो फादर से डिस्टेंस दिखाते हैं। वीनस भी 12th हाउस में ही है। वीनस भी 12th हाउस में है, तो और 11 डिग्री पे है, तो वाइफ के साथ भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। और आप ये देखोगे 7th हाउस में प्लूटो भी है, केतु भी है, सैटर्न भी है, तो इन सब का इफेक्ट है। मार्स का भी इफेक्ट इसमें आ रहा है, क्योंकि मार्स जो हमारा असेंडेंट लॉर्ड है, तो फैमिली में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही होगी वाइफ के साथ, जो मुझे समझ में आ रहा है। मदर इनकी जो है वो अच्छी है, उनके साथ रिलेशन इनके अच्छे हैं। मदर से is definitely point to a very discordant family life. I think A disturbed family life, or we can say his parents' Sorry. relations are not good. We can say that. his relation with his family, his relation with his family, yes. Will not be good. doesn't appear to be good. If you go Okay. to the married life, if you see the 7th house, Yeah. 7th Second house Rashi. basically is empty, but the aspects are from Pluto, Ketu, Saturn, and Mercury. Okay. Pluto, Ketu. Pluto, Ketu, Saturn, Mercury are the aspects in the. Mercury is, of course, partial aspect. Okay. So, Ketu, What we Ketu hints at detachment. right. बाथरूम के जरा कॉर्नर्स पे अच्छे से लगाया Ketu and Saturn both are there actually in the. And So partner's separation, house. chances of divorce. Pluto also Which- ends the relation, na, ends the qualities It of cleans that the- house. yeah. Pluto is Because also Pluto is But it also is there. aspecting, na? Detachment but from the material world, Pluto is also with there. attachment to the spiritual aspects. But Pluto also being in the 7th house hints at transformation. So, Yeah. this is an important point actually. So we can say he has got a divorce, But I think separation strained from the relation. Venus in Strained 12th strain, house or also they are indicates separated. separation. Venus in Separated, 12th maybe house. Separation. detached. Yeah. Venus in 12th house Detached. separation. Okay. So can somebody read the whatever we have come to conclusion? Question 1, question 2. Yeah. If anybody is writing. Who's writing? Somebody was said they're writing. Yeah. हाँ क्योंकि नेपच्यून भी है, यूरेनस भी है, प्लूटो भी है, तीनों है। भी है कुछ मिस्टीरियस ऐसा हुआ कुछ प्लान्ड अटैक्स भी हो सकते हैं बिकॉज नेपट्यून प्रेजेंस ऑफ नेपट्यून एंड दिस थिंग ना सो कुछ हाँ। ऐसा जिन्होंने मतलब कुछ प्लान किया हो इनके अगेंस्ट में उस तरह से कुछ हो सकता है और पॉलिटिकल में आ जाएगा ना जैसे हाँ। पॉलिटिकल में आपने बोला तो And पॉलिटिकल के अंदर राहु ऐड ऑन जो करके है- और फिर उनकी कोई प्लानिंग डेथ हो सकती है। Rahu is sudden, gives suddenness, and it can be something related to. यूरेनस आल्सो गिव सडननेस। हाँ राइट यूरेनस का भी ये आ रहा है उसपे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यूरेनस इज आल्सो रिलेटेड विद इलेक्ट्रिसिटी नो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम यहाँ पर यही सडननेस को ही लेके चलेंगे। शॉक्स हाँ झटका जैसे झटका आ जाता है हाँ यूरेनस इलेक्ट्रिक शॉक्स हाँ कुछ ऐसा अचानक जिससे किसी चीज को कोई झटका दिया जाता है ना जैसे झटका दिया जाता है। मतलब सडन डेथ तो ही माइट बी किल्ड एकदम से, है ना। अच्छा ये वैसे जो है गुरु भी मतलब अगर इनका बिहेवियरल पैटर्न इनके हम फर्स्ट हाउस से देखें तो इनके ऊपर जुपिटर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। जुपिटर का हाँ। कंप्लीट एस्पेक्ट आ रहा है। Aspect आ रहा है। तो नॉलेज काफी गेन करेंगे। ये खुद भी अपने आप में एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी रहे हाँ, हाँ, secretive तो right. रहेंगे, 100% Secretive secretive। भी है ये, हाँ, secretive।
मिस्टीरियस हाँ टाइप के, हाँ। नॉलेजेबल तो बहुत जहां तक knowledge- मुझे लग रहा है कि देखो आप सन और मरकरी का इफेक्ट एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस पे भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये किसी एजेंसी में गवर्नमेंट की तरफ से भी वो हो सकते हैं। नहीं, बट अ, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है इनका, कहाँ आ रहा है गवर्नमेंट नहीं, का? सन और सन मरकरी सन देखो ना आप 6th हाउस में आ सन रहा की है वजह से आ रहा है। सन आंटी 7th सन हाउस में और सन का भी कोई इफेक्ट है? सन और मार्स की सन राशि है, आप उससे देखो आ रहा है, मार्स की सन राशि है। सन वीनस एंड मार्स पार्शियली का 11th 6th में भी हाउस जा रहा है, 11th हाउस में भी जा रहा है सन। तो हाँ, तो इफेक्ट वो तो 12th फादर हाउस से का ही देगा ना इनको पहले। गेन भी मिला होगा ना, प्रॉपर्टी वगैरह का गेन मिला हो सकता है फादर से, बट 6 में भी आ रहा, तो ही माइट हैव क्रिएटेड सम एनिमीज आल्सो, हिडन एनिमीज। हिडन एनिमी भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई, क्योंकि देखो मार्स भी है, मार्स की राशि भी आ रही है, सन भी आ रहा है, मरकरी भी आ रहा है वहां पर। वहाँ है सन एंड मरकरी गवर्नमेंट से रिलेटेड हो सकता है, मार्स कोई जैसे जासूस या कोई ऐसा किसी टाइप के कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी ऐसे ही लगी हो सकती है इस चीज में। आप ये देखो ना कि इसके अंदर राशि है मार्स की, मरकरी का पार्शियल इफेक्ट है, वीनस का फुल इफेक्ट है, उसके बाद मार्स का पार्शियल है, सैटर्न का पार्शियल है, केतु का पार्शियल है, सन का पार्शियल है ना? मार्स का तो आप कंप्लीट एस्पेक्ट है, मार्स का पार्शियल नहीं, मार्स का पूरा है। हाँ, मार्स का पूरा है, मार्स का पूरा इफेक्ट है। तो हाँ, मार्स का की राशि होगी और मार्स इसके अंदर बैठा है, तो नेचुरली इन्होंने काफी सारे अपने एनिमीज क्रिएट किए हैं अपनी और लाइफ, बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहे होंगे। बहुत कॉम्पिटिटिव भी रहे, कॉम्पिटिशन ये सब चीजें रही हैं। एंड क्या इनके नेचर में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इनके ब्रदर एंड वो होंगे उनके साथ में मतलब थोड़े रिलेशंस इनके ऐसे ही रहेंगे, या लड़ाई नहीं, झगड़ा एंड ऑल? मार्स जो है वो अपने थर्ड हाउस थर्ड में में बैठा हुआ है, शत्रु उसमें बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, तो राशि में। हाँ, ना ये तो हम वो कह हो सकते सकता है हैं। कि सिबलिंग्स के साथ इनका प्रॉब्लम रहा हो। मार्स केतु की है, शनि दुश्मन की राशि नहीं है, दोस्त की राशि है मार्स। मैम इनका देखो फ्रेंड ना है। आप हाँ? देखो 10th हाउस में भी 5th राशि आ रही है। मंगल का शनि फ्रेंड नहीं है? यहाँ पे हम जब कंबाइंड देखते हैं तो वो फ्रेंड है। ओके, हम नेचुरल नहीं देख रहे, हम कंबाइन करके देख रहे हैं, तो सैटर्न जुपिटर उनका और फ्रेंड है। जुपिटर और थर्ड हाउस में जुपिटर और जुपिटर सैटर्न है तो इनका दोनों का जो इफेक्ट है। हाँ, सिबलिंग्स के साथ अच्छा होना चाहिए। जुपिटर फर्स्ट हाउस को देखता है तो सुसाइड के लिए तो नहीं उसको मोटिवेट करेगा। जुपिटर इज एस्पेक्टिंग वो- फर्स्ट हाउस। या नहीं, बट मैडम 8 को अगर देखेंगे हम लोग, हाँ 8th में 8 है को कि अगर हाँ राहु है तो वो राहु नेपच्यून प्लूटो नेपच्यून तो नया नया दिखाएगा आपको, नया वर्ल्ड, न्यू थिंग ही विल ट्राई, यस Pluto will clean it, and since he is in the Mars is there. It could be an accidental overdose, I feel, of drugs. Or he must be the very this thing, Rahu is adamant there. person, ego person. According to numerology, Rahu is Madam, associated talk with about the the great. astrology. Madam, salsa, no numerology, please. Only salsa. Because only salsa, because we are not. एक्सीडेंटल हो Yeah. सकता है क्योंकि सन जो है 12th हाउस में है एंड 7th उसका वो है Right. So, एक्सीडेंट 6th house में the Mars is there, no? Yeah. First Rashi. So 6th house will 6 and 8 are Mars will enhance this thing, no? Activity of the 8th house. But 8th में It will help in courage, no? Good leadership skills, courage, lot of courage, abilities to fight against the odds. हाँ, वही वो जैसे वो होगा ना कि एकदम से वो होता है कि सबके ऊपर कंट्रोलिंग पावर जो होती है, जैसे इस तरह का कुछ नेचर उनका होगा, तो वो शायद जिद्दी किस्म के भी होने चाहिए। हाँ जी, राइट। डिसिप्लिन भी होने चाहिए, जिद्दी किस्म के भी होने चाहिए।
बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मतलब टू लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है। लीडरशिप क्वालिटीज कैसे अच्छी है? लीडरशिप क्वालिटीज हम ज्यादातर सन से देखते हैं। सन इनका मार्स भी लीडरशिप क्वालिटीज डिसाइड करता है ना। मार्स लीडरशिप क्वालिटीज डिसाइड नहीं करता, मार्स तो फॉलो करता है ना। सन कमांडर इन चीफ हो गया, सन Commanding करता है। मार्स क्योंकि ऊर्जा है ना, मार्स क्योंकि मंगल मार्स इज अ वेरी है, स्ट्रॉन्ग तो लाइक फिर वो- तो वो एक लीडरशिप क्वालिटी भी देता है ना, क्योंकि उसके जैसे अंदर वो courage सेनापति है, हुआ ना, मार्स extra को हम लोग power क्या है। सेनापति बोलते हैं ना, तो ही इज द लीडर ऑफ द एंटायर सोल्जर्स। जी सो जी उसको ये करता है, गवर्न करता है कि कमांडिंग नेचर, कि हमको करना क्या है नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एग्जीक्यूट, क्या प्लान करना है। बिल्कुल। काफी कर लिया हम लोगों ने, है ना, फटाफट 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 फटाफट। थोड़ा सा फैमिली लाइफ के बच्चे ऊपर भी देखते हैं, मम्मी का बच्चे देखते हैं, इनके पापा का सुंदर देखते होंगे। फिफ्थ हाउस में मून बैठा है। हैं। और 12 की राशि वीनस की शनि राशि का है। एस्पेक्ट है, सन मून सन बैठा का है, लेकिन aspect- सैटर्न आ रहा है तो वहां भी शूश बन रहा है। हाँ, इनको क्या है कि विष योग तो बन रहा है, बट इनका यहाँ पर ये हो सकता है कि बच्चे देर से होंगे बट हुए होंगे इनके, और सुंदर और इंटेलिजेंट होंगे। हम्म। मून है वहां पे तो मून है तो इस मतलब वजह से चांसेस है कि अच्छे, मतलब लाइक गुड लुकिंग चिल्ड्रन। वीनस की राशि जो है ना, स्वीटनेस होती है वीनस बच्चों हाँ। में, एक चंचलता होती है, वो चीज होती हाँ, और जुपिटर का पूरा एस्पेक्ट है। है। जुपिटर का हाँ जी बिल्कुल, 9th एस्पेक्ट पूरा आ रहा है। क्या और हम क्वेश्चन शनि के कैसा बारे था में हमारा? क्या हम 4th हाउस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं? आई रियली मैं वही कह रही थी, थोड़ा सा मम्मी कि पापा के बारे स्वग्रही में होके बैठा हुआ है, तो क्या थोड़ा सा इसके ऊपर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि Madam, I think Madam by name Pujari was summarizing. Oh, sorry, No, I I was was speaking not and the summarizing. phone was on mute. Oh, I'm so sorry. Okay, can I'm you so please sorry. summarize, ma'am, whatever you have written? Yes, sir. Again from the starting, or only for this death? From all the questions, all the all questions. questions you can summarize. Yes. First, we talked about the activities. So Jupiter makes him very rightful. Jupiter aspect on the 10th house. Mars aspect makes him courageous, hardworking, and disciplined. Rahu makes him do his work by hook or crook. Mercury False makes him. correction. Jupiter aspect is not there on the 10th house. Sorry? Jupiter aspect is not there on the 10th house. It is on 9th house. Predominant activity we are viewing from the 10th house, energy house. So what we said, he could be in occult sciences because there's a Sun, combination of Venus, Ketu Mercury, and Saturn Pluto. there. Yeah. Aspects on the 8th house. No, 10th house. 10th house. We are talking about 10th house. Okay. So 10th house has Ketu, Sir, Saturn. Saturn and Ketu makes him detachment and Occult sciences. Occult sciences. That is our guess, yes. And he's got leadership qualities, authoritative. That is what he desires to be. Yes, That absolutely. Okay, right. And then then you all said that Uranus and Ketu in the 9th, he has disturbed family life. Then we come to the next question. No. Family Hello. life is the next question. Next question. Hello. Family life. Yeah, please continue. So in family life, Saturn, Pluto, Uranus, Ketu are present there. Rahu and Neptune are also there. Yes. So this is one more house where Uranus, Neptune and Pluto are present. Okay. So usually this, what you call, usually this combination
This is not very is giving a common. very good picture of the family. The family is of very good lineage or lineage, Okay. as they say, Oh, yes. Okay. because all three are there in that house, which shows Yes. Brahma, Vishnu, Mahesh. family is a very good lineage. Yeah, Brahma, Vishnu, and Maheshwara. Mahesh. Yes. And Ketu is also, Rahu is there. Rahu and Saturn are also there. Yes. Now, regarding the partner, married partner, if you go to the 7th house, you have Mercury, Saturn, and Ketu, and Pluto. Yes. And 12th house Venus, which causes separation. How do you say 12th house causes separation? 12th house Venus. Correct. Venus is But why do you 12th say house. it causes Venus, NS, or separation? bed pleasure separation. It is according to what I have studied so far, it is either the wife is from another caste, another community, or it is separation. I have seen No, these is two this conditions. there in Salsa? No, this is my observation. Okay. No, but, it is not in Salsa. Sir has not taught, but I have seen. 12th house Venus gives you love marriage, मतलब दूसरे community. 12th is also the house of tension. Correct. So, uska Foreign tension hai, land also, no? Sun भी है either वहाँ पे, he is sun. giving tension or he is getting tension from the wife. Yeah. Because Venus is No, there. की राशि के अंदर एंड जो उस मून का एस्पेक्ट है वो भी वहां पर इनकी कन्या राशि पे 11th हाउस पे जा रहा है, तो मून की वजह से शायद, आई डोंट नो। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है तो इससे। वही मेल हाँ, चाइल्ड मुझे भी नहीं ज्यादा है, लग बट रहा है। मैंने ऐसे ही एक थॉट आया तो रखा है, तो वो हम सर से हम बात कर सकते हैं इस बारे में। नहीं, यहाँ पर मेल चाइल्ड ज्यादा लग रहा है क्योंकि सन भी है, जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, और ये तीन सन कैसे है मैम 5th हाउस इनका पे? पार्शियल इफेक्ट नहीं है। पार्शियल एस्पेक्ट आ रहा है। पार्शियल एस्पेक्ट है। वो एक्चुअली अभी हमें नहीं पता, थोड़ा वो जुपिटर भी आ रहा है इसमें। हाउस में मून बैठा हुआ है, लेकिन वो पार्शियल है। जुपिटर का फुल एस्पेक्ट है हाँ, उसपे। जुपिटर का है। हाँ जी। एंड जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो अपनी ही राशि के उसके ऊपर भी हो गया, क्योंकि 12th नंबर की राशि है यहाँ पर, तो लॉर्ड भी है। हाँ, कैन से कि बेबी बॉय भी, आई डोंट नो, कंफ्यूजन। जो भी इनका बच्चा रहा होगा वो खुद में भी एक विजडम वाला इंटेलिजेंट बंदा रहा होगा बहुत। और उसको भी फेम मिला होगा पक्का। हाँ, वो सन का पार्शियल एस्पेक्ट उस पे भी आ रहा है, और हार्डशिप उसके साथ भी रही हो। ये तो स्पाउस का तो हमने डिस्कस करा था इनका बिजनेस का, कि बिजनेस चेंज किए होंगे इन्होंने, एंड काफी स्लो रहा होगा बिजनेस इनका, एंड काफी खर्चा भी किया होगा। एंड एक हमने किया इनका मैरिड लाइफ का भी हमने डिस्कस किया था। मैरिड लाइफ तो बुरी ही लग रही है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। सैटर्न भी है, केतु भी है, प्लूटो भी है जी, और वीनस जी जाके बैठ गए हैं 12th हाउस में जी, तो इसीलिए कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं गई होगी। एंड आई थिंक इनको लाइफ में जब भी कभी पैसों की जरूरत पड़ी होगी तो वो कहीं ना कहीं से आ गए होंगे, इनको कमी नहीं पड़ी होगी पैसों की। 12th हाउस में वीनस जो है वो आपको पैसा की देता कमी है। नहीं होने देगा। हाँ, कभी ये नहीं रहेगा कि आपके पास शॉर्टेज हो। हाँ, मतलब जब भी इनको जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। ये होता है। और पैसे वो स्पिरिचुअल रास्ते से ही आ रहे हैं मोस्टली। देखिए अगर अर्थ हाउस सारे उसी में, हाँ, वजह से जी सारे उसी रास्ते से आ रहे हैं। सब जगह केतु ही केतु है ना। या तो राहु है, केतु है, यूरेनस है। केतु और यूरेनस मेनली वो है ना इसमें। मेन तो अपना यही दिख रहा है कि भाई नेपच्यून और राहु जो है वो इनकी मेन स्ट्रेंथ बने,
स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। लेकिन एक चीज मेरे को वो मैं सर से जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि नेपच्यून जो है ना, नेपच्यून का जो मैंने देखा है ना, वो अधिकतर प्लैनेट्स के साथ नेपच्यून की दुश्मनी है। जो इनकी पूरी कुंडली में नेपच्यून सबका, ऑलमोस्ट सबका दुश्मन है। देखिए, सन का दुश्मन है, मार्स का दुश्मन है, वीनस का दुश्मन है, सैटर्न का दुश्मन है, राहु, केतु, यूरेनस, प्लूटो और मी प्लैनेट, सबका नेपच्यून दुश्मन, सबका दुश्मन है। और जाके वो भी 8th हाउस में बैठा है, जाके तो 8th और हाउस ज्यादा में बैठा है। प्रॉब्लम तो ये शायद क्रिएट करेगा। या राइट सर। तो सर इसकी वजह से वाइफ से ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। Yes, why not? Yes, हाँ, because tension is the 12th house ना, तो ego problem हो सकते हैं, clash भी हो सकता है। हाँ, हाँ। सन है फर्स्ट हाउस में, तो डोमिनेटिंग तो होगा थोड़ा सा ये। नहीं, फर्स्ट हाउस में सन Sun नहीं in है, the सन sun in the 12th 12th हाउस। house also shows he lost his father at an early एंड age. सर सन जो है वो मोक्ष के भी हाउस को शो कर रहा है। So he So lost 12th his father at an early age. That also we can think. why That do you way say also we that? can think. No, I don't think. How can? Balance हो जाती है। दोनों दोनों एक ही तरह का काम करते हैं मोस्टली, हाँ बिकॉज दोनों ही हाँ नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी की बट तरफ जाते हैं। जहाँ पर मून आ रहा है, जहाँ नहीं पर नहीं, मून एक की मिनट, राशि होगी, एक मिनट मैं मून और बोलूं। जुपिटर जो होते हैं वो एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो लेकिन जुपिटर अपनी स्वयं राशि में है, अपनी सेल्फ की राशि में, इसलिए जुपिटर इसका इनका बहुत अच्छा इनको इफेक्ट देता रहा होगा, इनके भाग्य में स्वराशि में बहुत नहीं है वृद्धि मैम, करता रहा होगा। जुपिटर स्वराशि में नहीं है, मून की राशि में है। जुपिटर अपने ही घर में है, अपने घर में, आपके घर में, अपने घर में, यहाँ अपने एक ही और घर चीज में। है। जुपिटर और केतु का जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जुपिटर एनहांस हो जाता है केतु से, लेकिन यहाँ केतु जो है ना, जुपिटर का अति शत्रु है। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो उसका मित्र का या उसके एनहांसर का काम नहीं कर रहा, उसको काट रहा है। यहाँ केतु का जो पार्शियल एस्पेक्ट है, केतु उनका अति शत्रु है हाँ, जुपिटर मैं यही कहना चाह रही थी उस टाइम पे। तो इसलिए एनहांस करने के चांसेस कम लग रहे हैं कि वो जुपिटर जो है वो केतु उनका। Okay, welcome back everyone. I hope those were very interesting 36 minutes of your life. Right? Very interesting. Very interesting, na? Okay. I was also listening to you guys, and I was also, feeling very interested in how you all think. Right? Okay, excellent. Very good. So, let me take you through the entire chart. Okay? Right? You can remember them, and while you are remembering them, we will also try to make some connections also. Okay? And if you find any point, अच्छा ये तो मैंने बोला था, right? This is what I had said. Then you can jump up and down with joy also. ठीक है? And you can scream on the mic also. Sir, मैंने बोला था. ठीक है? You can do that also. ठीक है? So let me open the charts. Okay. Okay. So I hope you have studied this chart only, right? Yes, sir. Okay. Okay. So let us start from the first house. Okay. So first house में हमें क्या दिख रहा है? We are seeing 8th राशि, right? तो जो मी प्लैनेट होता है सालसा मेथड में, या फिर असेंडेंट बोल दो आप, राइट? वो कौन है? लॉर्ड कौन है उसका? मार्स। 8th राशि का लॉर्ड मार्स है। तो हमने फाउंडेशन में भी देखा, राइट? तो मार्स का बिहेवियर कैसे होता है? और फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर हमारे, हम अपने अपने हम कैसे हैं, सेल्फ है, कैरेक्टर है ना? तो मार्स इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है? तो व्हाट डज दैट मीन? ये बड़े वॉरियर किस्म के इंसान हो सकते हैं, राइट? अभी अच्छा वॉरियर है कि बुरा वॉरियर है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, है ना? फिर another thing we can see here is
जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द फर्स्ट हाउस, यस और राइट। ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द वॉरियर, दैट मीन्स ये हो सकते हैं एक राइटियस वॉरियर, है ना, मतलब सही रीजन के लिए अंडरस्टूड, राइट। सही रीजन के लिए फाइट कर सकते हैं, या नॉलेज के लिए फाइट कर सकते हैं, या नॉलेज के साथ में फाइट कर सकते हैं, राइट। वी आर टेकिंग इट वेरी स्लो, वेरी सिंपल वेज, ओके। अभी हम कौन से प्लैनेट का मूड अच्छा होगा नहीं होगा वो अभी हम नहीं देखेंगे, राइट। वी विल कंसीडर ऑल प्लैनेट्स टू बी इन अ नाइस मूड एंड वी विल स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है, ओके। और किसी का एस्पेक्ट आ रहा है क्या फर्स्ट हाउस के Saturn, ऊपर? sir, Saturn. राइट। अभी एक चीज मेरी नजर पड़ी, राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, हाँ, राहु पार्शियल aspect. वाला, Yes, sir. राइट। राहु 25 डिग्री है ना यहाँ पे, हाँ, राहु का भी आ रहा है। करेक्ट। सो ये भी मेरी नजर पड़ी अभी, तो थोड़े से क्रेजी लग रही है मेरे को। नटखट वाले नहीं, नटखट नहीं, थोड़े से किसी चीज से ना अगर अटैच हो गए तो मतलब एकदम जुनून के साथ अटैच होने वाले, I who can look. राइट, करेक्ट, राइट। जुनून के साथ एकदम अटैच होने वाले कोई तो मुझे ये दिख रहे हैं अभी, क्योंकि राहु का भी आ गया वहां पे, राइट। अभी राहु है वहां पे, वहीं पे मार्स भी है, वहीं पे जुपिटर भी है ना, सैटर्न Pluto भी है सर, ओके। प्लूटो भी आ रहा है क्या? अरे Pluto वाह, का एस्पेक्ट है सर. वेरी गुड। प्लूटो का भी प्लूटो भी आ रहा है वहां पे फर्स्ट हाउस में। तो अभी देखो इनका बिहेवियर हम धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक प्लैनेट लेकर, राइट। वी आर यूजिंग द the KISS formula, keep things super simple, right, keep it super simple, right। तो एक प्लैनेट करके कनेक्शन करके देख लो बस, राइट। सो प्लूटो भी अगर आ गए फर्स्ट हाउस में तो प्लूटो को हम कौन बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। ट्रांसफॉर्मर, राइट, इट्स अ ट्रांसफॉर्मर। अभी ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब डिस्ट्रक्शन होगा। तो हो सकता है अभी तक जो उनका जो स्वभाव उभर के आ रहा है, हो सकता है इनको कुछ ना कुछ तो बर्बाद करना है, कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रॉय करना है, जिसके लिए एक मार्स की एनर्जी उनके साथ में है, नॉलेज की एनर्जी उनके साथ में है, और एक सर के ऊपर एक जुनून सवार है, राइट। Mercury is also there sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, ठीक है। मर्क्यूरी भी है 25 डिग्री, करेक्ट। सो पार्शियली तो ये बुद्धिमान भी है, राइट। ये बुद्धिमान भी है, राइट, अकल भी है, राइट, एनालिसिस के स्किल्स भी है, राइट, मैथमेटिक्स भी अच्छा हो सकता है, डिप्लोमेटिक स्किल्स भी है, या फिर प्लानिंग अच्छा कर सकते हैं, या फिर दूर की सोच सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? ओके। और कौन है फर्स्ट हाउस में? आप बोल रहे थे सैटर्न भी आ रहा है क्या? आ रहा है क्या सैटर्न में? Saturn aspect sir, hard 29 working. degrees, या तो यहाँ से 7 8, अच्छा यहीं से पार्शियल सैटर्न आ रहा है ना, करेक्ट। तो सेवा भाव भी है, Hard working sir. और हमने क्या सीखा है सैटर्न के बारे में? ये जस्टिस Hardworking. मांगने वाले, राइट। सैटर्न कौन होता है? जस्टिस गिवर नहीं होते हैं सैटर्न, सैटर्न होते हैं जस्टिस मांगने वाले, राइट। क्या ब्यूटीफुल चार्ट है, राइट। क्योंकि जब मैं आपको इस पर्सन का नाम बताऊंगा, ये सारी चीजें देख लो कैसे एकदम से ऐसे अचानक से एकदम दिखाई देंगी आपको, राइट। वेरी गुड, ठीक है। अभी then let us look at some another point. So overall हमें इनका behavioral pattern थोड़ा सा एक अंदाज अपने को आ गया है, राइट। बहुत फुर्तीले होंगे, होशियार भी है, एट द सेम टाइम नॉलेजेबल भी हो सकते हैं, राइट। कोई जुनून रखा है साथ में, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, करेक्ट है, वेरी गुड। राहु के वजह से सीक्रेटिव होना हो सकता है, एंड स्कॉर्पियो की राशि भी है लग्न में, मार्स है ना, राइट। तो
एकदम डायनेमिक पर्सनालिटी अपने को यहाँ पे, डायनामिक, नॉलेजेबल, होशियार, राइट, स्मार्ट भी है सर, वीनस का भी इफेक्ट है। राइट, वीनस का भी है। हाँ जी, मी प्लेनेट में देखिए। अच्छा, ट्रांजिशन राशि है, करेक्ट। सो 7/8 आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो मतलब ग्लैमरस भी हो सकते हैं या होना चाहते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली लाइफ सिचुएशंस के वजह से दिस पर्सन कैन बी वेरी एंटरटेनिंग आल्सो, राइट। सर ये मोदी जी का चार्ट लग रहा है। किसका? जो आपने बताया, मोदी जी का, पीएम मोदी। ठीक है, देखेंगे, एंड में देखेंगे, राइट। सर इनका बर्थ 1889 से 1902 के बीच है। ओके, ठीक है, लेकिन नेपच्यून जेमिनी में है, आपने ओके, बताया। राइट राइट, ठीक है। फिर इसके बाद ओके, तो हमें उनका बिहेवियरल पैटर्न, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम पड़ गया, ठीक है। अभी इसमें ना हम ऐड करते जाएंगे, राइट। मतलब मैं ये भी सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एनालिसिस सिंपल तरीके से, आपकी थॉट प्रोसेस आपको कैसे रखनी है और क्या करते रहना है, ठीक है। ऑलराइट सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये जो भी कुछ इनके अंदर चल रहा होगा ये जल्दी से शो नहीं करेंगे। हो सकता है, हो सकता है, राइट, ओके। राहुगिरी है यहाँ पर ना, मतलब अंदर कुछ है, थोड़ा सा बाहर कुछ है। राइट राइट राइट, करेक्ट। अभी जुपिटर भी है ना वहां पे, तो शायद गलत कुछ नहीं करेंगे ये, मतलब अगर कुछ छुपा भी रहे हैं ना, तो भी राइट रीजंस के लिए दिस पर्सन विल ट्राई टू हाइड सम थिंग्स, राइट, ओके। अभी बट सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि एक अच्छे प्लैनेट में आते हैं, और बाकी जितने भी है मार्स, सैटर्न, राहु, प्लूटो, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं इनका इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब हम मोड ऑफ प्लैनेट निकालेंगे तभी मालूम पड़ेगा, अभी नहीं देख सकते वो चीज, है ना। हम फिलहाल क्या, मैंने क्या बोला, अगर आपने मोड ऑफ द प्लैनेट्स नहीं निकाला है, आप समझ के चलो कि हर एक प्लैनेट अच्छे मूड में है, राइट, एंड डू द एनालिसिस, अंडरस्टूड। सैटर्न की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो सबका। करेक्ट, वेरी गुड प्रसाद जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस कनेक्शन, वेरी नाइस कनेक्शन। किसकी वजह से सर? सैटर्न, राइट। और सैटर्न की वजह से ऐसे भी हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं होगी वो भी लेंगे वो भी लेने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना आई विल ट्राई टू टीच यू अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है, और आई विल ट्राई टू राइट हियर आल्सो, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, ओके। अभी हमने क्या देखा, ये जो मी प्लैनेट है ये 5 डिग्री में है, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मी प्लैनेट 5 डिग्री। मी प्लैनेट मतलब हम सालसा मेथड में मी प्लैनेट बोलते हैं, आप असेंडेंट भी लिख सकते हो अगर लेवल 2 आपने नहीं किया है। अगर लेवल 2 किया है तो मी प्लैनेट ही लिख देना, ठीक है। तो मी प्लैनेट यहाँ पे है 5 डिग्री। जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, बराबर है। जुपिटर कितने डिग्री में है? 18 राइट। तो हम करेक्ट, तो ये एस्पेक्ट में भी हम 18 डिग्री लिख कर देखते हैं। आई एम टीचिंग यू न्यू कॉन्सेप्ट ना एवरीबॉडी, ओके, ठीक है। फिर राहु कितने डिग्री में है? 25 राहु 25 डिग्री में है। तो इनका पार्शियल एस्पेक्ट आ रहा है, करेक्ट। ओके, तो राहु जो है यहां से, राइट, यहां से अगर एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कहीं तो उसका एस्पेक्ट आएगा, करेक्ट नो? आएगा, है ना, राइट। मतलब ये हाउस के एक्चुअली इस पोजीशन से 12th हाउस में 25 डिग्री में एस्पेक्ट जाएगा, बराबर ना, राइट, ओके। तो हम ये भी लिख कर रख देंगे अभी के लिए। फिर और किसको देखा हमने? प्लूटो को देखा था। प्लूटो का क्या एस्पेक्ट है? प्लूटो 2 डिग्री पे है सर, 8th हाउस में। करेक्ट, तो पार्शियल एस्पेक्ट भी सेकंड में जाएगा 2 डिग्री, बराबर, राइट, ओके। और किसका एस्पेक्ट आ रहा था? सैटर्न हम बोल रहे थे। सैटर्न कितना डिग्री है? 29 डिग्रीज, राइट, वो भी यहीं पे आएगा,
अंडरस्टूड, हम्म। राइट? और कौन है? मरकरी सर, मर्क्यूरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यहीं पे है, कितने डिग्री पे है मर्क्यूरी? 25। 25 डिग्री। ओके, वेरी गुड। ओके, और कोई है? केतु का क्या है? नहीं, केतु आगे है। नहीं वीनस भी आप बोल रहे थे ना, कुछ आ रहे फर्स्ट हाउस में? नहीं वीनस प्लैनेट पे उसकी सर। राशि है, राशि राशि है, अच्छा, ओके partial ओके, वो ठीक है, ट्रांजिशन वाली राशि, ठीक है, transition। ओके, ठीक है। अभी सर एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, सैटर्न फर्स्ट हाउस में कैसे जाएगा ये ये मुझे तो समझ एस्पेक्ट में होता है, राइट? अच्छा एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट, राइट? 1 ये 2 हम लोग 3 बाद में 4 सीखेंगे हम 5 लोग 6 ना। 7 8 9 10, करेक्ट। जब आप लेवल 2 में आओगे तब आप सीख लोगे इसको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। सर इन वीनस का कैसे हुआ इसके साथ में रिलेशन फर्स्ट हाउस से? ये 8th हाउस, ये 8th राशि जो है ना, ये सिर्फ 5 डिग्री राइज हुई है, देखो। अच्छा, देन थोड़ा सा पीछे उधर से। करेक्ट, वेरी गुड नीरू जी, ठीक। राइट? ओके, अभी यहाँ पे इमीडिएटली एक देखो, एक मैजिकल चीज दिखाई देती है। राहु 25, मर्क्यूरी 25, राइट? मतलब क्या हो रहा है डिग्री वाइज ना, ये राहु और मर्क्यूरी का यहाँ पे एक एस्पेक्ट और एक प्लैनेट, इसका एक कंजंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, राइट सर। राइट? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट राहु का किसके ऊपर हो रहा है? मर्क्यूरी के ऊपर हो रहा है, राइट? तो दैट मीन्स व्हाट, बहुत बुद्धिशाली हो सकते हैं ये। मतलब इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर मैजिक है। करेक्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, right? So Mercury stands for communication skills, right? Mercury stands for speech, Mercury stands for intelligence, long term right? planning, long term planning, डुप्लीकेशन, करेक्ट। लॉजिकल थिंकिंग। और ये बड़े अटैच्ड होंगे इन सारी चीजों से, बिकॉज राहु स्टैंड्स फॉर अटैचमेंट ऑल्सो, नो, राइट? तो ये बड़े अटैच्ड हो सकते हैं। सर अट्रैक्शन पावर भी होगी इनके Correct. अंदर एक्स्ट्रा? क्या बोल रहे हो? अट्रैक्शन पावर। अट्रैक्शन पावर, वीनस, हाँ, तो ये प्रिंस है ना, प्रिंस प्रिंस मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सडनली प्रिंस को एक पावर मिल गई यहाँ पे, पावर मिल गई जी, है ना, राइट? आपके अंदर के प्रिंस को पावर मिल गई, है ना, इनके अंदर के प्रिंस को पावर मिल गई, राइट? ओके, साइंस को भी है ना। मिल गया। और दूसरा अगर आप देखोगे 5 डिग्रीज एमपी, दैट इज असेंडेंट, एंड राहु 25 डिग्रीज, तो ये भी नजदीक नजदीक हो गए, राइट सर। अंडरस्टूड, right? So that means what? Rahu has a direct effect on the personality of this person, right? This is another thing also to be understood, right? सर इन दैट में असेंडेंट एंड वीनस की भी डिग्रीज दोनों की सेम है, लेकिन वो अलग अलग हाउसेस में है ना। वीनस 11 डिग्री है और 11 जो है 5 डिग्रीज है, हाँ, तो डिग्री 11 का डिग्री, डिफरेंस सॉरी बहुत सर, हो जाता है ना सॉरी उनके सर, बीच सॉरी का। मैंने 5 डिग्री लिख दिया। जी जी जी, कोई बात नहीं, राइट? तो अभी हमें क्या हो रहा है मालूम है, हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है कि ये पर्सन का बिहेवियर कैसे होगा। अगर राहु कनेक्टेड है तो राहु बुद्धि के साथ कनेक्टेड है, राइट? और एक सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, अंडरस्टूड, राइट? और जुपिटर और सैटर्न एक साथ हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जुपिटर भी एमपी के साथ कनेक्टेड है, राइट? और अनदर चीज देखने को मिलेगी आपको, प्लूटो और सैटर्न बहुत क्लोज बाय हैं, एस्पेक्ट्स में क्यों ना हो, लेकिन प्लूटो और सैटर्न बहुत क्लोज बाय है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लूटो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और सेवा भाव। प्लूटो सैटर्न कैसे हुए? मेरे हिसाब से तो सैटर्न जो है वो राहु के साथ नहीं होना चाहिए। प्लूटो हमारा सेकंड हाउस में जा रहा है ज्यादा, लेकिन 2 डिग्री है ना, जितना नहीं, ठीक है, फर्स्ट से पहले वाले में ये 2 डिग्री है, राइट? ओके, और सैटर्न 29 डिग्री पे आ रहा है ना एस्पेक्ट, यहाँ पे आएगा ना नजदीक, और तो एकदम हाँ, दोनों एकदम मैच हो जाएंगे ना, नजदीक नजदीक। 3 डिग्री का ही डिफरेंस आ गया दोनों में, दोनों के एस्पेक्ट्स में, जी 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 जी, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये
ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी उनको लेकर आनी है यूजिंग सम काइंड ऑफ सेवा, राइट, या फिर एकदम ईगो को जीरो करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट, ओके. नाउ let us move on to the next point. सर दोस्तों के साथ वाला नहीं समझ में आया. Saturn is friends. अभी देखो, केतु in second house, Uranus also in second house. Yes, sir. That means what हो सकता है, birth family से detachment, लेकिन at the same time यूरेनस के वजह से नई नई फैमिली भी मिली होगी, राइट. क्रिएशन है ना, यूरेनस स्टैंड्स फॉर क्रिएशन, नई नई चीज क्रिएट करी होंगी. इसमें तो फैमिली आ गई या फिर वॉइस आ गया, राइट. तो मतलब एक इंट्यूशन ये आ रहा है कि बार बार इनका वॉइस बंद किया गया होगा और वापस यूरेनस की वजह से उन्होंने झटके से वापस अपने वॉइस को चालू किया होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम पहले से अभी जोड़ते हैं, हमने क्या बोला था, स्पीच इज वेरी मैजिकल, communication skills are very magical. Neptune and Rahu is also aspecting. लेकिन केतु is coming in the second house. Second house is the house of voice and speech, right? गला. Yes or no? Yes, sir. तो इसका मतलब इनको बोलने के लिए तो बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी situations हुई होंगी, right? Uranus और केतु are they in conjunction? Yes, they are also in conjunction. What a beautiful chart this is, right? That means what? Uranus stands for revolution, something out of the box, something completely new. Are you understanding this? तो revolution के वजह से कभी शायद इनकी जबान जो है वो बंद कर दी गई होगी. That is another connection that we can make here. All right? और फैमिली से दूर रहे होंगे, ऐसा भी दिख रहा है, और नई नई फैमिली बनाई होगी, ऐसा भी दिख रहा है अपने को, राइट. स्पिरिचुअल फैमिली, स्पिरिचुअल फैमिली हो सकती है, करेक्ट, राइट. अभी मार्स इज इन थर्ड हाउस, अपने ही घर में है, सॉरी नॉट अपना घर, लेकिन करेज वाला जो भाव है उसमें करेज वाले मार्स आ गए. यस और नो? और अगेन एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, और केतु भी है, राइट. केतु भी आ रहे हैं उसमें, राइट, एस्पेक्टेड बाय जुपिटर आल्सो. तो एक सीधा कनेक्शन आप क्या बोल सकते हो कि किसी गुरु के वजह से, किसी गुरु के गाइडेंस के वजह से इनमें हिम्मत बड़ी होगी, राइट. बहुत सारी हिम्मत. वैसे भी मार्स इन थर्ड हाउस, राइट, दैट पर्सन कैन हैव अ लॉट ऑफ करेज, क्योंकि वो हाउस भी करेज का है और मार्स भी हमारे करेज के ही है, राइट, वैलर के है. ओके, तो जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द मार्स, राइट. दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड थिंग हैपनिंग हियर. सो देयर कैन बी सम गुरु जिसके वजह से इनको बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी, राइट, या करेज मिला होगा, राइट. ओके, जुपिटर अभी 4th राशि में है, हो सकता है कोई गुरु जिनके बारे में ये काफी इमोशनल भी है, राइट. अभी जाके हमने राशि की बात करी यहाँ पे, राइट. हो सकता है कोई गुरु जिनके बारे में ये काफी इमोशनल है, राइट, क्योंकि जुपिटर इज सिटिंग इन द 9th हाउस, जो गुरु का भी भाव है, राइट सर, राइट. और 4th राशि आ गई यहाँ पे. 4th राशि किसकी होती है? मून की होती है, राइट. इमोशनल कनेक्शन की होती है, सेंसिटिविटी की होती है, राइट. तो ये भी एकदम इमोशनली जुड़ना चाहते हैं अपने गुरु के साथ में, और उनको शायद ऐसा गुरु मिला भी जिनके साथ बड़ा इमोशनल कनेक्शन इनका हो सकता है. अंडरस्टूड. इनका मार्स और केतु का कंजंक्शन भी बन रहा है यहाँ पर. कंजंक्शन मार्स और केतु कंजंक्शन में भी है. हाँ जी. ओके, वेरी गुड. ठीक है, मार्स 1042 और केतु 2549. ठीक है, जस्ट मतलब एकदम एज पे है ना, थोड़ा 15 डिग्री के ऊपर है ये, है ना. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो भी मान के चले तो हो सकता है कोई स्पिरिचुअल चीजों के वजह से करेज बढ़ता हो, राइट. या फिर
हो सकता है कोई स्पिरिचुअल भाई मिल गए हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। केतु स्टैंड फॉर स्पिरिचुअल, नो राइट? Yes, sir. आपके चार्ट में भी आप देख लेना कि केतु अगर किसी भी प्लैनेट के साथ कनेक्शन बना रहा है या कोई भी हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, वहां पे आपके स्पिरिचुअल वो लोग आपके जिंदगी में आ सकते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी लेकर आता है केतु वहां पे। अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट? नीड नॉट बी फिजिकल बट कनेक्शंस, बट दे विल बी स्पिरिचुअल कनेक्शंस या फिर सोल लेवल पे कनेक्शंस बोलो, जो भी है, राइट? गंभीर बदमाश। ये किसका नॉइज है? पिछली बार विराट से झगड़ा हो गया था। मैच देख रहे हैं सर ये। Right. ठीक है, फिर let us talk about the 8th house, right? 8th house में देखो, अभी तक हमने क्या क्या देखा कि बड़े डायनामिक इंसान है, बड़े बुद्धिमान है, बड़े करेजियस भी है। अभी तक हमने बिल्कुल भी किसी का भी नाम नहीं लिया कि ये कौन हो सकता है। अभी वो दूर है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, राइट? अभी आएंगे, धीरे धीरे आएंगे हम वहां पे। जैसे जैसे ये पूरा चार्ट ऐसे खुलते जाएगा ना, खिलते जाएगा, वैसे वैसे हम वहां पे आ जाएंगे। अभी 8th हाउस में हमें क्या दिख रहा है? एक तो नेपच्यून है, एक तो प्लूटो है, एक तो राहु है, राइट? और क्या है? नेपच्यून कंजक्शन है, यूरेनस केतु का एस्पेक्ट है, और यूरेनस का एस्पेक्ट है। अच्छा, नेपच्यून एंड यूरेनस राहु का एस्पेक्ट है, कंजक्शन, करेक्ट है। और नेपच्यून राहु कंजक्शन, नेपच्यून और राहु कंजंक्शन है, ओके। सर मरकरी की राशि है। मर्क्यूरी की राशि है, नंबर की 3 नंबर। ओके। लेकिन क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस चार्ट में? केतु का एस्पेक्ट है सर। एक मिनट है, अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये जो ग्रुप है ना, ये इन बाकी सारे ग्रुप से दूर है। जी हाँ जी। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस पॉइंट? राइट? ये जो ग्रुप है, ये सारे ग्रुप से दूर है। राइट सर। तो अगर आप पंचदा मैत्री देखोगे ना, तो इसमें इन प्लैनेट्स के काफी सारे आपके दुश्मन निकल के आएंगे। यस सर। यस तो सर, नेपच्यून तो लगभग सबका ही सर दुश्मन वो है। डिस्कशन कर भी रहे थे कि नेपच्यून सबका वो है। राइट। नेपच्यून देखो, नेपच्यून तो अकेले ही पड़ जाएंगे क्योंकि प्लूटो और राहु साथ है, तो ये भी न्यूट्रल ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना? जुपिटर भी चलो दोस्त बन जाएगा एक बार तो, राइट? नेपच्यून जुपिटर दोस्त है, लेकिन अभी जुपिटर नेपच्यून जो दोस्त बनेगा, जुपिटर नेपच्यून को अपना ड्रामा नहीं करने देगा, अपने इल्यूजन्स नहीं करने देगा, राइट? बिकॉज जुपिटर इज वेरी ट्रूथफुल एंड राइटियस, नो? एंड एट द सेम टाइम नेपच्यून ये बाकी सारे का आइदर ये रहेगा, क्या बोलते हैं, आइदर मीडियम, मतलब नहीं सर, दुश्मनी है। खाली एक जो है मर्क्यूरी का न्यूट्रल है, बाकी सबका दुश्मन है। करेक्ट, न्यूट्रल या फिर दुश्मन वाला रिश्ता होगा, राइट? तो नेपच्यून जो है, भले नेपच्यून राहु कंजंक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन नेपच्यून यहाँ पे ना उनको सपोर्ट में कोई नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। राइट? तो ये व्यक्ति जो है ना, कितना भी ड्रामा करना भी चाहे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या बहुत टेम्पररी ड्रामा होगा और एकदम तुरंत पर्दाफाश हो सकता है। अंडरस्टूड? राइट? तो जब भी आप चार्ट देखोगे ना, ये भी चीज आज शायद हमने पहली बार बात करी, आपको ये प्लैनेट पोजीशन से भी थोड़ा सा ना आइडिया आ जाना चाहिए, राइट? मतलब कहाँ पे क्लस्टर्स है, कहाँ पे जमा है, राइट? और कहाँ पे मतलब एक प्लैनेट ऐसा अकेला रह गया है क्या, दूर रहा है क्या, राइट? ये सारी चीजें ना मायने रखेंगी। देखो सर, तो ये भी इसमें हो सकता है ना कि ये नेपच्यून को क्योंकि सब चीजें दबा दिया है, तो जो उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको वो फॉलो नहीं कर पाए होंगे। नहीं, नेपच्यून ऑलवेज टेल्स यू द नेचुरल स्ट्रेंथ, ठीक है? तो इनकी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या होगी? अगेन नेपच्यून कहाँ पे है? 8th हाउस में है, एस्पेक्टिंग 2nd हाउस, राइट? और 9th हाउस में भी है, एस्पेक्टिंग 3rd हाउस। तो नेचुरल स्ट्रेंथ क्या हो गई इनकी?
एक तो डीप साइंसेस हो गई या फिर डीप अंडरस्टैंडिंग हो गया अबाउट थिंग्स, रिसर्च, कम्युनिकेशन, रिसर्च हो गया स्ट्रेंथ, फिर ट्रैवल इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन communication भी है। voice is also a strength, marketing, reaching out to people, लोगों तक पहुंच पाना, that is also a strength, yes, right? ये सारी strengths है और इन strengths को वो दिखाएंगे भी, लेकिन नेपच्यून का जो ये एस्पेक्ट है कौन सा, ड्रामा, राइट, या फिर यू नो भले अच्छे रीजन के लिए क्यों ना हो, ड्रामा करके दिखाना, राइट, ये थोड़ा सा ना ऑन अ लोअर साइड हो सकता है, अंडरस्टूड, राइट? मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स की वजह से उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ में कोई असर नहीं होगा, है ना? नेचुरल स्ट्रेंथ वो हाउसेस जो है ना वो तो रहेंगे, नेचुरल स्ट्रेंथ तो वो रहेंगे, ठीक है, ऑलराइट, ओके। एंड फाइनल पॉइंट टू डिस्कस, अभी ये ग्रुप भी अलग पड़ गया देखो, लेकिन फिर भी ये 3 में ये जुपिटर आ जा रहा है, मतलब ये ऐसे ग्रुप, खैर ये ग्रुप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी आ रहे हैं साथ में, चलो ठीक है। सो ये अकेले नहीं पढ़ रहे ये 3 प्लैनेट्स, राइट, ओके। लेकिन क्या है, सन इज इन द 12th हाउस, yes, कितना डिग्री है, 2 डिग्री है, मतलब 11th एंड 12th, करेक्ट, मतलब लीडरशिप के वजह से, पॉलिटिक्स के वजह से सडन गेन्स, सडन रिकॉग्निशन, फेम, एंड एट द सेम टाइम टेंशन आल्सो, राइट, टेंशन भी मिलेगा, हेल्थ भी खराब होगी, राइट, बट फॉरेन ट्रेवल्स भी मिलेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकता है, करेक्ट, या फिर नाम, सन स्टैंड्स फॉर फेम आल्सो, नो, तो नाम भी सब जगह पे फैल सकता है, ओवरसीज फेम मिलेगा, ओके। सर मर्क्यूरी की वजह से इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, जबान कुछ बोलने की वजह से इम्प्रिजनमेंट, करेक्ट, वेरी गुड, राइट, मर्क्यूरी की वजह से इम्प्रिजनमेंट इज आल्सो पॉसिबल, राइट, जो उन्होंने बोला है। अभी मर्क्यूरी और सन कंजंक्शन है क्या, देखो तो पहले, नहीं है, नहीं सर, नहीं, वीनस और मर्क्यूरी कंजंक्शन है क्या, यस, सर मर्क्यूरी है, मरकरी और वीनस, वीनस एंड, ओके, वीनस सर अपनी राशि में भी है, करेक्ट, और हमने ये भी देखा था कि राहु इज टुगेदर विद मर्क्यूरी, हमने ये भी देखा था, राइट, तो हो सकता है हार्श स्पीच की वजह से फेमस भी हुए रहेंगे, राइट, हो सकता है लीडरशिप के वजह से जेल भी गए होंगे, राइट, या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा या इंटरनेशनल लोगों से बहुत मिले होंगे, राइट। अभी 12th हाउस इज आल्सो नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रैवल, इंटरनेशनल पीपल आल्सो, तो बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं बट दे आर स्टिल इंटरनेशनल पीपल, राइट, तो 12th हाउस इज हाउस ऑफ दैट आल्सो, ओके, ये भी आप समझ लीजिए। सर 12th हाउस में 7th राशि है, वीनस है, तो इनको लग्जरी की कमी भी नहीं हुई होगी कभी, हाँ, लग्जरी की कमी भी नहीं, या फिर बेड कंफर्ट सॉलिड है, करने वाले, राइट, बेड कंफर्ट सॉलिड होंगे, राइट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमेशा रिलैक्स्ड मोड में रहने वाले इंसान, ऐसे भी आप बोल सकते सॉलिड होंगे या सन के साथ में, मतलब वहाँ होने की वजह से उनको वहाँ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वो तो हमने डिस्कस किया ना, लीडरशिप के वजह से इश्यूज होंगे, बेड कंफर्ट, नहीं, बेड प्लेजर्स की बात कर रहे हैं, बेड कंफर्ट, प्लेजर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बेड कंफर्ट मतलब क्या, राइट, किसी ने, आप मेडिकली इल हो, है ना, तो आप हॉस्पिटल में जाते हो, फिर नर्स आके आपकी सेवा करती है, उसको बोलते हैं बेड कंफर्ट्स, अंडरस्टूड। तो आप ये 12th हाउस को अच्छे से समझो, और ये बेड कंफर्ट्स, ये वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। बेड कंफर्ट्स डज नॉट मीन प्लेजर, राइट। आप बीमार हो, आप मसूस के पास चले जाते हो, मसाज मिलता है आपको फॉर योर गुड हेल्थ, राइट, दैट इज कॉल्ड एज बेड कंफर्ट। वो तो सर हमें इनके फर्स्ट हाउस से भी समझ में आ रहा है कि अपनी हेल्थ की तरफ को ध्यान भी देते हैं ये, राइट। और अगर डेथ की हम बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव डेथ है, सडन डेथ है, जी सर, राइट,
कुछ तो राहुगिरी है डेथ के एरिया में, कुछ तो ड्रामा भी हो सकता है। तो सर पॉलिटिकल रीजन की वजह से, पॉलिटिकल मतलब रीजन, जो हम हाँ लोगों ने डिस्कस करा था, पॉलिटिकल रीजन की वजह से प्लानिंग डेथ या सडन डेथ, कुछ ऐसा। करेक्ट। तो थैंक यू सर। इन महान व्यक्ति का नाम है भगत सिंह। ओह यस सर। ओके, ठीक है। इस महान व्यक्ति लेकिन का नाम है ये भगत सिंह। तो फिर सर और ये जेमिनी इनकी नेपच्यून में, क्योंकि ये तो भगत सिंह इज 1907 हाँ जी, और नेपच्यून, हाँ लेकिन नेपच्यून 22 डिग्री। फिर क्या नाम है इनका? भगत सिंह। भगत सिंह। भगत सिंह नेपच्यून जेमिनी में 1889 से 1902 में था, तो इनका जन्म था 1907। तो 1992 और ये हमने सर सही 1992 के प्रेडिक्ट बीच किया में है कि इनका ऑल ऑफ सडन डेथ हुई थी और मतलब पॉलिटिकल रीजन से इनकी डेथ हुई है, हमने ये प्रेडिक्ट किया था। वेरी गुड, वेरी यस गुड। और मार्स का देखो कितना बड़ा रोल है, सब भाई मिले ना उनको, सब साथ हाँ साथ भाई मिल के, राइट, Spiritual। एक दूसरे को करेज देते रहे, एक दूसरे के गुरु बने फिरे, है ना। दैट इज ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। करेज का बहुत बड़ा रोल है। और पेरेंट्स से भी दूरी दिखा रहा है इनके चार्ट में राइट, तो। बुक्स पढ़ने का काफी शौक रहा, राइट। ओके, एक्सीलेंट। So I hope you enjoyed today's service meeting. Yes. सर इनकी मैरिड लाइफ सर के बारे वाज ही में भी आ मैरिड गया थोड़ा सा। नहीं नहीं, never No, married. not he never शादी married. तो हुई नहीं, मैरिड लाइफ तो है ही नहीं। उनके मूवी में दिखाया था कोई तो लव इंटरेस्ट था, but they never got married because Pluto is also there, no, partially in the 7th house. सर हमने यही डिस्कस और किया था कि केतु, मैरिज केतु का भी पार्शियल एस्पेक्ट आएगा, देखो 3rd हाउस से, सैटर्न मर्क्यूरी। right? Okay. So what was your biggest learning today? Let me know. सर हमने तो उनके बच्चे भी कर दिए थे कि हमने सोचा था उनका पहला बच्चा नहीं मैम, हमने डिस्कस किया था इसमें कि इनकी मैरिज नहीं हुई है। में है, हम कंफ्यूजन में है कि गर्ल होगा या बॉय होगा। मैरी थी सर इसमें से कुछ कि यंग एज में इनकी डेथ हुई, उसका कोई इसमें वो मिलता है क्लू? हाँ मिलता है ना, प्लूटो है, यूरेनस इज आल्सो देयर, यस नेपच्यून प्लूटो राहु और इज आल्सो देयर, राहु देयर, केतु भी है। सर इनका हमने फिक्स वाले हाउस से भी निकाला था कि सन और मरकरी और मार्स की राशि वहां आ रही है, कुछ ऐसा जो पॉलिटिक्स और मिलिट्री से रिलेटेड इनका कुछ रहा है इशू। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, वेरी सर गुड। ये मतलब 8th हाउस में प्लूटो यूरेनस उन सब से यंग एज का So अंदाजा young लगता है। age में death, especially Uranus, right? And young age में death can be also caused by, in this particular case, Pluto also. ओके मतलब इनकी पोजीशन अगर हमारी 8th हाउस में आती है तो हम इनको रिलेट करके कर सकते हैं। और And यहाँ तो more वैसे of Uranus, more of Uranus, ठीक है। अभी अब एस्पेक्ट्स में देखोगे ना, तो यूरेनस की डिग्री कितनी है देखो, 16, और राहु की डिग्री कितनी है देखो, 25। तो ये भी कंजंक्शन में आ गए, इन 8th हाउस। और नेपच्यून भी इनके साथ कंजंक्शन में है सर। करेक्ट, सो डेथ ड्यू टू सडन राहुगिरी, अंडरस्टूड। और सर 4th हाउस का भी हमने देखा कि इन्होंने लग्जरी लाइफ कभी नहीं जी है, बड़े सिंपल मोड में रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, ओके। सर अभी ये बेबी का भी एक बार क्लियर कर दीजिए सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्या बता चीज? दीजिए सर। सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि शायद इनकी जो फर्स्ट बेबी होगा वो गर्ल होगा या हाँ Okay. आगे का है, बट सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए ना, वो एक दिमाग में एक है। एक मिनट ना, चार्ट ओपन कर लेता हूँ वापस। इसलिए ना वैदिक के ऊपर तुरंत आप ऐसे जंप मत करना, है ना। सर मैं बुक्स हाँ, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जी सर। राइट, ओके। सो चलो, चाइल्ड का बोल रहे थे ना,
Okay. ओके, तो सैटर्न का डिग्री कितना है? सर 29। 29। 29। तो सैटर्न का पार्शियल इफेक्ट है 5th हाउस में। यस सर। यस सर। तो सैटर्न मतलब क्या हो गए? एम्प्लॉइज हो गए, दोस्त हो गए, राइट? तो उनको बच्चों की तरह ट्रीट करना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट? और डिले इन चाइल्ड, right? Saturn is coming in the 5th house, right? Delay in child, right? और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है और सन का भी है। करेक्ट, जुपिटर का भी एस्पेक्ट है और किसका? सन का भी है। सन का भी पार्शियल है। राइट, सन का भी पार्शियल एस्पेक्ट है, जुपिटर का भी पूरा एस्पेक्ट है, और मून भी है जी, राइट? मून इज ऑल्सो हियर राहु एंड राहु इज ऑल्सो देयर। यस राहु के कैसे? ओके, राहु नहीं है, राहु का कैसे है? राहु का कैसे है? पार्शियल इम्पैक्ट राहु नहीं है 5th हाउस पे। राहु नहीं है, आएगा ना 25 डिग्री से, राहु आएगा है ना? सर, राहु है, राहु है, राहु आएगा, है। वो भी आएगा, हाँ right? जी। So okay, so Rahugiri is also there in the 5th house overall. So I think this person, felt that the entire country is his child. Understood? या फिर सारी माताओं का ये बच्चा है। Moon is there in the 5th house with Rahu's connection is also there. Sun's connection is also there, जुपिटर का कनेक्शन भी है। right? सारे गुरुओं का ये शिष्य है। Saturn and Jupiter aspect are there in the 5th house. Understood, right? तो सर ऑन द ऑल ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मेल चाइल्ड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। कौन सा कॉम्बिनेशन? सर लाइक सैटर्न, राहु, जुपिटर, सन और राहु। अभी वहां पे राशि कौन सी आ रही है? देखो 5th हाउस सर में कौन सी जुपिटर राशि? की राशि, जुपिटर जुपिटर की राशि, राइट? ओके, तो अभी बच्चे तो बड़े पसंद होंगे। अंडरस्टूड, राइट? 5th हाउस इज हाउस ऑफ चिल्ड्रन, और हमारे सालसा मेथड में हम क्या बोलते हैं? जो राशि होती है दैट इज योर ड्रीम्स, दैट इज योर डिजायर्स, दैट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट हाउस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मतलब 5th हाउस बच्चों से काफी लगाव होगा, सिखाने का मन होगा उनको, खुद भी बच्चों जैसे होंगे कभी कभी। बच्चे सुंदर भी हो सकते हैं, मून है, राइट? सो ये सारी चीजें देखना बहुत 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 जरूरी है। ओके, चलो, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट डिड यू लर्न टुडे, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग टुडे? ओके, अभी हम सवाल नहीं पूछेंगे, अभी वी विल क्लोज एंड जस्ट शेयर व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग टुडे। टाइप इन मी इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। ओके सर फर्स्ट पहले तो सिंपली सबको एक्सप्लेन करना प्लैनेट वाइज, और फिर उसको इलेबोरेट कैसे करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को या उसकी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, स्टार्ट वेरी स्लो, ठीक है? स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस, स्टार्ट विद द असेंडेंट, स्टार्ट विद व्हाट आर द प्लैनेट्स दैट आर देयर इन द फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस से हमें उस पर्सन का बिहेवियर, कैरेक्टर, नेचर, राइट? ओके, इस सबके बीच में सबके साथ एक कम्युनिकेशन करना बहुत बड़ी बात है, जो आज हम लोगों ने सीखा। एंड एक एक प्लैनेट के बारे में जब हम लोगों ने इसको चीजों को सीखा तो हमें बहुत कुछ चीजें नई भी सीखने को मिली हैं। करेक्ट नीरू जी, वेरी गुड। काफी कुछ आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस प्रसाद जी। हाँ सर, आपने जो नया कॉन्सेप्ट सीखा है आज, जहाँ पे आपने राहु विच इज एस्पेक्टिंग दी 12th हाउस गोइंग इनटू फर्स्ट हाउस, उसके लिए बहुत मतलब क्लैरिटी आ गई। मतलब वी आर एबल टू रिलेट विद द डिफरेंट प्लैनेट्स कि उनका ये कैसा होगा पर्सनालिटी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट प्रसाद जी। यस लीना जी। सर सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास में अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी को कैसे कनेक्ट करना है, बट सर आज एक चीज बहुत अच्छी समझ में मुझे आई कि एक तो एस्पेक्ट्स देखना, और जो अभी तक हम देख रहे थे कि डिग्री को ये देखना कि वो आगे वाले हाउस को इफेक्ट कर रहा है या उस पर पिछले का इन्फ्लुएंस आ रहा है, इसको चार्ट में कैसे देखते हैं सर, आज थोड़ा सा क्लियर हुआ। दो बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया, बट
लग रहा था कि कुछ टाइम बाद हम भी ऐसे डिस्कस कर Definitely, पाएंगे। definitely, definitely. एंड Very सर good. हमने अभी तक यूरेनस Yes, Chetna ji. सर सबसे अच्छी बात जो थी ना, मैं बहुत टाइम से इस चीज को समझना चाह रही थी, जो आपने ये बताया कि किस तरीके से, लाइक जैसे फर्स्ट हाउस में आपने बताया था कि राहु का और मरकरी का कैसे कॉम्बिनेशन, एक युति बन रही है यहाँ पर, और इस तरीके से आपने दूसरा भी बताया था कि सैटर्न का और केतु का या यूरेनस का Right. कैसे बन रहा है। तो वो चीज मैं समझना चाह रही थी बहुत टाइम से, और आज मेरी ये क्लियर हुई है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज समझ के। Very good. Very good. Right. Okay, everyone. So thank you so much for joining in today. Right. Again, Vapas, next Sunday we will have one more Saras meeting. Every Sunday we will keep having Saras meetings. So keep attending in same numbers, even more numbers, and so that the entire learning experience can be much fruitful. Okay. See you everyone. Take care. Pranam and namaste. Okay. See you everyone. Thank you, sir. Thank you so much.